Good afternoon, students. This is my second video of this part A of chapter 1 of macroeconomics of class 12 CBSE economics. And name of this part is some basic concepts of macroeconomics. And in the first video of this part, I have already explained the first three topics, which are what is macroeconomics and macro level classification of an economy and types of goods. Now in this video I'm going to cover the remaining topics of this chapter, which are investment, net investment, stock and flow, and circular flow of income. So these topics I'm going to cover in this video. So I'm going to start with the first topic, that is investment. And investment is also known as gross investment. Why it is known as gross investment? Because investment shows total investment in a country. So since investment means total investment and total means gross, that is why investment is also known as gross investment. It is also known as gross domestic capital formation. Why it is known as gross domestic capital formation? I will explain this thing later on. Firstly, I'm going to make you understand the meaning of investment. What is the meaning of investment? It refers to meaning of investment. Here it is given. It refers to increase in the stock of capital in a production unit during an accounting year. एक accounting year में, as we know that accounting year starts on 1st April and it ends on 31st March. So accounting year is considered from 1st April to 31st March. So during this time period, whatever increase in the stock of capital in a production unit, that increase will be known as investment. So investment, यदि आपको फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना होगा? यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन अ प्रोडक्शन यूनिट. तो इंक्रीज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल स्टॉक ऑफ कैपिटल माइनस इनिशियल स्टॉक ऑफ कैपिटल. सपोज फाइनल स्टॉक ऑफ कैपिटल एक प्रोडक्शन यूनिट में फाइनल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज़ 1,50,000 at the end of financial year. Means on 31st March of that financial year the stock of capital is 1,50,000, and in the beginning of financial year, means initial stock of capital in that production unit suppose was of 30,000 only. So by what amount the stock of capital in this production unit has increased? Initially it was only 30,000, now it is 1,50,000. So difference is 1,20,000. So this 1,20,000, which is the increase in the stock of capital, this will be known as investment. Is this clear? अब इसको समझाने के लिए मैं एक और सिंप्लीफाइड तरीके से कोशिश करता हूँ इसको समझाने की. सपोज कोई प्रोडक्शन यूनिट है और उसमें इनिशियल स्टॉक ऑफ कैपिटल मीन्स ऑन 1st अप्रैल फाइनेंशियल ईयर का जो ये डेट है, उस डेट पे इस प्रोडक्शन यूनिट में जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है दैट इज़ ऑफ 30,000 रुपीज़. कितने की कैपिटल प्रोडक्शन यूनिट में है? 30,000 रुपीज़ की कैपिटल प्रोडक्शन यूनिट में है. तो ये 30,000 रुपीज़ इस प्रोडक्शन यूनिट में लगाया गया है. मतलब 30,000 रुपीज़ दिस अमाउंट हैज़ बीन यूज्ड on purchase of various assets in production unit like land, building, machine, fuel, raw material, etc. All these assets in this production unit have been purchased by spending how much amount? 30,000 rupees. So we are saying that initial stock of capital is 30,000 rupees. Okay. Now suppose फाइनल स्टॉक हम देखते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. फाइनल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज़ 1,50,000 रुपीज़. इट बिकम्स 1,50,000 रुपीज़. मीन्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच हैज़ बीन spent in this production unit on purchase of various assets like same things, building, machine, land, raw material, fuel, that is of 1,50,000 rupees. मीन्स इनिशियली एक्सपेंडिचर कितना था? 30,000 रुपीज़. अभी एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 1,50,000 रुपीज़. मीन्स ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, ये जो ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर बिटवीन 1st अप्रैल टू 31st मार्च एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ एसेट्स कितना हुआ है? फाइनल हो गया 1,50,000. पहले से था 30,000, अभी हो गया है एक्सपेंडिचर 1,50,000. इनिशियली एक्सपेंडिचर था 30,000, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ है 1,20,000.
1,20,000 1,20,000 रुपीज़ स्पेंड करके एसेट्स को परचेज़ करा गया ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। तो एसेट्स को जो हम परचेज़ करते हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कितने अमाउंट ऑफ मनी की एक्स्ट्रा एसेट्स परचेज़ करी गई हैं? ऑलरेडी एसेट्स थी 30,000 की बिगिनिंग में, और फाइनली एसेट्स कितने की होगी? 1,50,000 की। मतलब ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर एक्स्ट्रा एसेट्स ऑफ 1,20,000 रुपीज़ हैव बीन परचेज्ड, एंड दिस amount 1,20,000 rupees which has been spent during this time period on purchase of assets, this will be known as investment, because investment means purchase of assets। तो कितने का परचेज हुआ है एसेट्स का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये पता करने के लिए फाइनल एक्सपेंडिचर या फाइनल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 1,50,000। और इनिशियली एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 30,000। ये जो फाइनल वैल्यू है एसेट की, इसको बोलेंगे फाइनल स्टॉक ऑफ कैपिटल। और जो इनिशियल वैल्यू थी एसेट्स की 30,000 रुपीज़, इनको बोला जाएगा इनिशियल स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो फाइनल जो एसेट्स की वैल्यू है, इनिशियल एसेट्स की वैल्यू को यदि उसे माइनस कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में कितने की एक्स्ट्रा एसेट्स परचेज़ करी गई हैं। और जो भी हम एसेट्स परचेज़ करते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो जितने अमाउंट की एसेट्स हम परचेज़ करते हैं वो हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को कैसे डिफाइन करा जाता है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन अ प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किसी भी अकाउंटिंग ईयर में एक प्रोडक्शन यूनिट में कितने की एसेट्स परचेज़ करी गई, मतलब कितने से कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज़ हो गया, यदि ये पता चल जाए तो हमको इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इसको पता करना है तो फाइनल स्टॉक ऑफ कैपिटल में से इनिशियल स्टॉक ऑफ कैपिटल को माइनस कर दीजिए। इसका सिंबल्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट का सिंबल होता है आई और कैपिटल का सिंबल होता है के, और फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक करेंगे तो चेंज इन हमको पता चलेगा चेंज इन कैपिटल। तो चेंज इन कैपिटल पता चल जाएगा। यदि चेंज इन कैपिटल पॉजिटिव आता है मतलब कैपिटल हैज़ इंक्रीज, इट मीन्स दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। यदि चेंज इन कैपिटल नेगेटिव आता है मतलब फाइनल स्टॉक ऑफ कैपिटल कम है, मतलब सपोज फाइनल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज़ ऑफ सपोज 50,000 और इनिशियली स्टॉक ऑफ कैपिटल वॉज ऑफ 60,000, मतलब अभी फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000 रुपीज़, मीन्स एसेट्स ऑफ 10,000 रुपीज़ हैव बीन सोल्ड। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होकर क्या हो जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब यदि चेंज इन कैपिटल आप निकालते हैं एंड दैट इज़ कमिंग आउट एज पॉजिटिव मीन्स देयर इज़ इन्वेस्टमेंट, इफ इट इज़ कमिंग आउट एज नेगेटिव इट मीन्स दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। क्योंकि इनिशियली कैपिटल का स्टॉक कितने का था? 60,000 का, अभी कितना बचा? 50,000 का, मतलब 10,000 की एसेट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हैव बीन सोल्ड। Sale of assets is known as disinvestment. I have already told you. Is this clear? Now इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या शो करता है? टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन अ प्रोडक्शन यूनिट। सो टोटल मतलब ग्रॉस, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्यों बोलते हैं? ग्रॉस इसलिए बोलते हैं बिकॉज टोटल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक मीन्स दिस इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन डन ड्यूरिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रॉस एंड डोमेस्टिक। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज़ इन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया था इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल या स्किल्ड एंड एफिशिएंट ह्यूमन बींग्स। तो फॉर्मेशन का मतलब मैंने वहाँ पे आपको बताया था, फॉर्मेशन मीन्स कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ और कैपिटल में इंक्रीज़ हो रहा है। और डेफिनेशन मैंने यही बताया, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो रहा है? कैपिटल का हो रहा है फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है ना, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है। और टोटल कैपिटल फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है, इसीलिए इसको डोमेस्टिक ले रहे हैं। ग्रॉस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को 3 नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देयर इज़ अनदर नेम ऑफ दिस ऑल्सो।
अब इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं या इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो भी प्रोडक्शन यूनिट में इन्वेस्टमेंट करा जाता है उसके देयर आर टू कंपोनेंट्स, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यदि आपको पता करना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देना होगा। मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यदि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द टोटल इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ विल सी दैट what will be the formula of investment equals to fixed investment plus inventory investment। fixed investment और inventory investment को हम यदि ऐड कर देते हैं तो इससे हमको पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्शन यूनिट में। अब हम स्टडी करेंगे ये जो फार्मूले हैं, इनको डिटेल्ड स्टडी हम लेटर ऑन करेंगे। फर्स्टली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वंस वी नो अबाउट दीज टू वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दीज फार्मूले। तो इन दोनों फार्मूले को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को डिटेल में स्टडी ना कर लें। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक वैसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लाइक वाइज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो अभी क्या हो गया, यदि केवल इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है टर्म फिक्स, तो इसमें लग गया फिक्स। सो इन द सेम वे एज इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का एक और नाम मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट को मैंने बताया था इट इज़ नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन द सेम वे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यदि आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो वैसे ही जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा वो भी रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, केवल कैपिटल से पहले क्या लग जाएगा फिक्स्ड। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन अ प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इट रेफर्स टू, यहाँ पे लिख गया इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन अ प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लाइक इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, वैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो प्रोडक्शन यूनिट की फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक में यदि इंक्रीज हो रहा है तो इस वाले इंक्रीज को बोला जाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। मतलब प्रोडक्शन यूनिट में मशीन्स और बिल्डिंग्स का जो स्टॉक है उसमें जो भी इंक्रीज होता है उस इंक्रीज को बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सपोज इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, मशीन्स और बिल्डिंग्स हैं, इनका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी है इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये कितने की हैं, सपोज 50,000 रुपीज़ की। एंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो मशीन्स और बिल्डिंग्स का जो स्टॉक हो जाता है वो हो जाता है सपोज 1,20,000 रुपीज़ का। मतलब फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक कितने से बढ़ गया, पहले था 50,000 रुपीज़ का 1,20,000 रुपीज़। मीन्स व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, 70,000 रुपीज़। मीन्स ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ 70,000 रुपीज़ हैव बीन परचेज्ड। और जो भी फिक्स्ड एसेट्स की जो परचेजिंग पे जो एक्सपेंडिचर होता है, एसेट्स की परचेजिंग पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और फिक्स्ड एसेट्स की परचेजिंग पे जो इन्वेस्टमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो 1 लाख पहले 50,000 रुपीज़ की मशीन्स और बिल्डिंग थी, अभी 1,20,000 रुपीज़ की हो गई। मतलब ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर द एक्स्ट्रा machines and buildings of 70,000 rupees have been purchased. मतलब 70,000 rupees have been spent on purchase of buildings and machines. Buildings and machines are fixed assets. It means 70,000 rupees have been spent on purchase of fixed assets. So purchase of fixed assets means fixed investment. Purchase of assets means investment. So purchase of fixed assets means fixed investment. तो इस तरह से fixed investment को कैसे define करेंगे, it refers to, यहाँ पे हो जाएगा increase
इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन अ प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था वैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का क्या था, फाइनल स्टॉक ऑफ कैपिटल माइनस इनिशियल स्टॉक ऑफ कैपिटल, ये हो जाएगा फाइनल स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस इनिशियल स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो वहाँ पे कैपिटल था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। इज दिस क्लियर। अब इसको भी फर्दर एक्सटेंड करा गया इस फार्मूले को, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आगे एक्सटेंड करके एक दूसरा फार्मूला भी हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तक हम जाएँ उससे पहले और भी कुछ चीज़ें हमको पढ़नी होंगी। जैसे व्हाट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लाइकवाइज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज it refers to increase in inventory stock of a production unit during an accounting year. So we have to define inventory investment in the same way as we define the investment and fixed investment. कैसे, it refers to increase in stock of capital मतलब investment, increase in stock of fixed assets fixed investment, increase in stock of inventory stock of inventory means increase in inventory stock means inventory investment. अब इन्वेंट्री स्टॉक होता क्या है, इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग्स। इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब क्या होता है, बचा हुआ स्टॉक। प्रोडक्शन यूनिट में जो भी बचा हुआ स्टॉक होता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। क्या क्या बचा हुआ स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। सपोज पेन प्रोडक्शन यूनिट में बना के बेची जा रही है पेन, एंड सपोज 50 पेन्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ विच 40 वेयर सोल्ड एंड 10 यूनिट्स रिमेंड अनसोल्ड। तो ये 10 यूनिट्स के किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। वो गुड्स जो फाइनली फिनिश हो गई थी लेकिन उनका स्टॉक क्या रह गया, अनसोल्ड रह गया, ये बिक नहीं पाई, तो ये हो जाएंगे स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। सेकेंड, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो फाइनलाइज नहीं रहती हैं, दीज आर अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सम गुड्स रिमेन अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये पूरी तरह से फिनिश नहीं हुई हैं। जैसे पेन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सपोज़ 50 यूनिट्स जो पेन थी वो फाइनली मैन्युफैक्चर हो गई थी, और सपोज़ 40 यूनिट्स ऑफ पेन ऐसी थी जिनमें मेन बॉडी पेन की बन गई थी और उसमें इंक फिल हो गया था लेकिन अभी कैप नहीं बन पाई थी। तो ये 40 यूनिट्स ऑफ पेन विल नॉट बी सोल्ड, ये अभी बेची नहीं जाएंगी जब तक इनकी कैप फाइनली फिनिश करके इसमें यूज़ न कर लिया जाए, तब तक इसको सेल नहीं करा जाएगा। तो इस तरह से ये भी अनसोल्ड रह जाएंगी, तो इसको क्या बोलेंगे, अनसोल्ड, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। एंड यहाँ पे स्टॉक हो गया, ये भी हो जाएगा स्टॉक ऑफ अनयूज्ड रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट में यूज़ नहीं होता है उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ अनयूज्ड रॉ मटेरियल। तो इन तीनों को मिलाकर बनता है इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक प्रोडक्शन यूनिट का जो होता है, इट इज़ मेड ऑफ 3 थिंग्स। Inventory stock of any production unit is made of 3 things: stock of unsold finished goods, stock of unsold semi-finished goods, and stock of unused raw material. These 3 make the inventory stock of any production unit. Next, we'll see what is the formula which is used to find out the inventory investment. Inventory investment को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करा जाता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मैंने बताया, इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक। तो इंक्रीज फाइंड आउट करने के लिए फाइनल स्टॉक को इनिशियल स्टॉक से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फाइनल स्टॉक क्या हो जाएगा, स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये क्या हो जाएगा फाइनल स्टॉक। और इनिशियल स्टॉक क्या होता है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा इनिशियल स्टॉक। 31 मार्च का स्टॉक हो जाएगा फाइनल स्टॉक। फाइनल स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्या होता है, क्लोज होता है, तो इसीलिए इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं फाइनल स्टॉक को। और 1 अप्रैल को जो इनिशियल स्टॉक होता है, या जो 1 अप्रैल को जो स्टॉक रहेगा, इसे क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, इसीलिए 1 अप्रैल को ओपनिंग डे बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स का, और 31 मार्च को फाइनल डे या क्लोजिंग डे बोलते हैं। तो फाइनल डे पे जो स्टॉक होता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग डे पे जो स्टॉक होता है उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो 1 अप्रैल वाला स्टॉक हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, 31 मार्च वाला स्टॉक हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब फाइनल स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, इन दोनों को यदि एक दूसरे से माइनस करते हैं तो हमको पता चल जाएगा चेंज इन स्टॉक। So final stock is known as closing stock in this context, and
इनिशियल स्टॉक इज़ नोन एज ओपनिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक में से इनिशियल ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा चेंज इन स्टॉक, कितना स्टॉक में चेंज हुआ। सपोज़ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक इनिशियल स्टॉक था 1000 का, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया सपोज़ 1500 रुपीज़ का, 1500 का, तो चेंज इन स्टॉक कितने का हो गया, 500 रुपीज़ का स्टॉक में चेंज आ गया। तो इसी तरह से, और इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के दो फार्मूले हो गए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट we have to study depreciation. What is depreciation? Depreciation, it refers to fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear during an accounting year. किसी भी accounting year में जो fixed assets यूज़ होती हैं, fixed assets means machines या buildings, इन बिल्डिंग्स में जो नॉर्मल वेयर एंड जो भी मशीन्स और बिल्डिंग्स में नॉर्मल वेयर एंड टीयर होता है, उसके कारण इनकी वैल्यू में जो रिडक्शन होता है, जो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है जितने अमाउंट से, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, सपोज़ मैंने एक बाइक परचेज़ करा, बाइक इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज इट इज़ एंड इट इज़ अ मशीन। बाइक एक मशीन है, मशीन मीन्स फिक्स्ड एसेट। तो मैंने एक बाइक परचेज़ करा, वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट हो गई। सपोज़ मैंने एक ब्रांड न्यू बाइक 50,000 रुपीज़ में परचेज़ करा, और 2 इयर्स तक इसको मैंने यूज़ करा। 2 इयर्स तक यूज़ करने के बाद एक बायर मैंने ढूंढा, बायर का नाम सपोज़ ए है, और उसको मैंने सेल करा। तो यदि मैं सेल करने जाऊँगा तो विल बायर गिव मी 50,000 रुपीज़ विच वॉज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बाय मी? नो। जब मैंने इसको परचेज़ करा उस टाइम पे बाइक ब्रांड न्यू थी, इसीलिए इसके वैल्यू मैंने 50,000 रुपीज़ पे करा। अभी ये 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सेकेंड हैंड गुड हो गई है, तो इसीलिए इसको 50,000 रुपीज़ इसका नहीं मिलेगा। सपोज़ बायर ने मुझे इसके लिए 35,000 रुपीज़ दिया, तो इसकी वैल्यू कितने से डिक्रीज़ हो गई, 15,000 रुपीज़ से डिक्रीज़ हो गई। इसी 50,000 रुपीज़ से जो वैल्यू डिक्रीज़ हुई, इसको बोला जाएगा डेप्रिसिएशन। अब आप पूछोगे कि 15,000 रुपीज़ से वैल्यू क्यों डिक्रीज़ हो गई? डिक्रीज़ इसलिए हो गई क्योंकि 2 इयर्स तक मैंने इसको यूज़ करा है इस बाइक को, तो 2 इयर्स में इसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर बहुत ख़राबी आई होगी। तो ये ए इंडिविजुअल ने ये एस्टिमेट करा है, क्योंकि ये परचेज़ करने से पहले इसने मेरी बाइक को देखा होगा। देखने के बाद इसने ये अनुमान लगाया है कि 2 साल तक जो मैंने बाइक को यूज़ करा है तो इसमें ख़राबी बाइक में आई है, इसीलिए इसको मेंटेनेंस कॉस्ट लगानी पड़ेगी, इसको मेंटेन कराना पड़ेगा, इसको ठीक कराना पड़ेगा। एंड दिस पर्सन इज एस्टिमेटिंग दैट ही वुड हैव टू स्पेंड 15,000 रुपीज़ ऑन द मेंटेनेंस ऑफ दिस बाइक। तो इस बाइक के मेंटेनेंस पे इसको कितना खर्च करना पड़ेगा, 15,000, ये इसका अनुमान है, 15,000 रुपीज़ इसको खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बाइक की वैल्यू कितनी थी पहले, 50,000 रुपीज़। तो इस 50,000 में से 15,000 ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा, क्योंकि इसको पता है कि ये अपने पास से इसको लगाना पड़ेगा। तो वैल्यू बची कितनी, 35। तो ये 35,000 रुपीज़ मुझे पे कर रहा है, 15,000 ये लगा देगा। तो इसमें जो भी वेयर एंड टीयर है सब दूर हो जाएगी और ये नई बाइक की तरह काम करने लगेगी, और इसकी टोटल वैल्यू फिर कितनी, टोटल वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 50,000 रुपीज़ की। तो ये 50,000 रुपीज़ इसीलिए मुझे नहीं दे रहा है क्योंकि 15,000 का इसने एक्सपेक्ट करा है कि इसमें हुआ है वेयर एंड टीयर। यदि मान लीजिए कोई दूसरा इंडिविजुअल आता है परचेज़ करने के लिए और उसका एस्टिमेशन अलग होगा, यदि अनदर इंडिविजुअल इज़ कमिंग एंड ही इज़ एस्टिमेटिंग दैट देयर इज़ वेयर एंड टीयर ऑफ इन दिस बाइक, देयर इज़ लेस वेयर एंड टीयर, उसको लगता है कि कम इसमें ख़राबी आई है और मेंटेनेंस पे 10,000 ही इसको खर्च करना पड़ेगा, तो ये 10,000 कम देगा इसकी वैल्यू, मतलब ये कितना देगा, 40,000। तो इस केस में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10,000 रुपीज़ इसको स्पेंड करना पड़ेगा इसके मेंटेनेंस पे, क्योंकि नॉर्मल वेयर एंड टीयर हुआ है, इसीलिए इस केस में इसकी वैल्यू कितने से डिक्रीज़ हो गई, 10,000 रुपीज़ से। तो इस केस में डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़। यदि कोई अदर इंडिविजुअल है और उसको लगता है कि इसमें और ज़्यादा ख़राबी है, तो वो इसकी वैल्यू 20,000 रुपीज़ कम देगा, मतलब ये इसको वैल्यू कितना देगा, 30,000 रुपीज़, और ही विल एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव टू स्पेंड 20,000 रुपीज़ ऑन द मेंटेनेंस ऑफ दिस बाइक, इसीलिए वो इंडिविजुअल मुझे 20,000 रुपीज़ कम देगा, और उस केस में इसमें डेप्रिसिएशन कितने का माना जाएगा, 20,000 रुपीज़ का। तो डेप्रिसिएशन का मतलब वेरी सिंपल है, यदि किसी भी मशीन में नॉर्मल वेयर एंड टेयर के कारण उसकी वैल्यू में जितना रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन यदि आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट हमको पढ़ना है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो पता बन जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। ओके,
अब नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब हमको पता था ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इनिशियली जब मैं आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब बताया था तो मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्रॉस, नेट उसमें नहीं आया था, यहाँ पे क्या आया था, ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, अब जब नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो ग्रॉस की जगह पे हम टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे, नेट। ग्रॉस को रिप्लेस क्या कर देगा, नेट, और इसका नाम हो जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो नेट लाइक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन द सेम वे नेट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये इसका नाम होता है, नेट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यदि फॉर्मूले को फर्दर एक्सटेंड करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, यदि साइड चेंज करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन इधर चला जाएगा साइड चेंज, तो माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। यदि साइड चेंज करेंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब इसको फर्दर एक्सटेंड करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, पहला सबसे स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज, अभी मैंने बताया था नेट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इन द सेम वे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट इन्वेस्टमेंट की जगह पे लिख सकते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस डेप्रिसिएशन। तो अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला और क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। ये फार्मूला बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। एक और फार्मूला बन जाता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। इज दिस क्लियर। अब ठीक ऐसे ही हम एक और फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे हमने रख दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, लाइक वाइज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जगह पे हमने क्या लिखा, इसको हटा दिया, इस फार्मूले को हमने दूसरी जगह अप्लाई किया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे इसी से मिलता जुलता टर्म हमने लिखा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, सेम वे में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये इसकी ब्रेकिंग होती है इस तरह से इसको। अब ये सारे फार्मूलों को यदि याद रखेंगे तो फर्स्ट स्लाइड के बाद जो मैंने फार्मूले आपको बताना स्टार्ट करा था, इन्वेस्टमेंट को कैसे डिफाइन करा जाता है या इन्वेस्टमेंट के क्या फार्मूले होते हैं, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, पिछले स्लाइड में मैंने बताया था। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम बोल सकते हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रह गया। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को दूसरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वैसे ही ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको आगे फर्दर हमने एक्सटेंड करा, तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की फर्दर ब्रेकिंग हम कर सकते हैं, इसके फर्दर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं तो क्या पता चल जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। तो इस तरह से फाइनल जो फार्मूला बनता है, इन्वेस्टमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका फाइनल फार्मूला क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। यदि ये तीनों टर्म दिए गए हैं, तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट
stock and flow. What is stock and what is flow? Stock is given as stock relates to a point of time. It is a quantity measured at a point of time, such as capital of a business on 1st April 2013 was 10 lakh रुपीज़. ऐसा कोई भी क्वांटिटी इकोनॉमिक्स में जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाता है, दैट इज़ नोन एज स्टॉक. एंड फ्लो इज़ एनी क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी क्वांटिटी जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की मंथली, एक मंथ में इसकी वैल्यू इतनी थी, या ईयरली वैल्यू, या क्वार्टरली वैल्यू, या डेली वैल्यू, या वीकली वैल्यू, इस तरह से मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, तो उसको बोलते हैं फ्लो. फ्लो रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है. इट इज़ मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एन आवर, per day, a month, etc. Such as fixed investment during November 2012 was 100 लाख रुपीज़. मतलब ये कहा जा रहा है कि नवंबर मंथ में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसी प्रोडक्शन यूनिट में 1 लाख रुपीज़ का था. तो ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसका एग्जांपल हो गया? फ्लो का, क्योंकि इसे मेजरमेंट कब करा गया? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, एक पूरे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. वो पीरियड ऑफ टाइम क्या था? 1 मंथ का. कौन सा मंथ? नवंबर मंथ. और यहाँ पे स्टॉक का एग्जाम्पल क्या हो गया? कैपिटल, क्योंकि बताया जा रहा है कैपिटल ऑन 1st अप्रैल, एक दिन एज ऑन 1st अप्रैल वॉज 10,000 लाख रुपीज़. 10,000 लाख रुपीज़ कैपिटल था ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. किस पॉइंट ऑफ टाइम पे? ऑन 1st अप्रैल को. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको मेजरमेंट नहीं करा जा रहा है. तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है स्टॉक और फ्लो पे? स्टॉक और फ्लो पे कुछ वेरिएबल्स के नाम दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि वेदर दीज वेरिएबल्स, या कुछ क्वांटिटीज़ के नाम, और पूछा जाता है वेदर दीज आर स्टॉक एंड फ्लो. तो कैसे पता करेंगे? कोई भी क्वांटिटी आपके सामने आती है तो आप सोचिएगा कि उस क्वांटिटी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप एट अ मोमेंट ऑफ टाइम उसकी वैल्यू बताएंगे या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू बताएंगे. यदि आपको लगता है कि उसको एक मोमेंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू बताई जाती है तो वो स्टॉक हो जाएगा. यदि आपको लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू बताई जाती है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फ्लो का. कैसे? मैं आपको इसको समझाने की कोशिश फिर से करता हूँ. जैसे कि सपोज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर फादर्स इनकम. आपके फादर की इनकम क्या है? तो आप ये नहीं बताएंगे कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनकम ऑफ माय फादर इज़ दिस मच. ये नहीं बताएंगे कि आज के डेट में, जैसे आज के डेट में मेरे फादर की इनकम ये है, ये नहीं बताएंगे. आप बताएंगे कि माय फादर्स मंथली इनकम इज़ दिस मच. मतलब यदि वो सैलरी क्लास से बिलोंग करते तो आप बताएंगे माय फादर्स इनकम इज़ 80,000 रुपीज़ पर मंथ. ये उनकी सैलरी आप बताएंगे 80,000 रुपीज़ पर मंथ. या आप बताएंगे कि यदि वीकली उनको सैलरी मिलती है तो बताएंगे हिज इनकम इज़ 20,000 रुपीज़ वीकली. या ईयरली इनकम अर्न होती है तो बताएंगे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी ईयरली. या ऐसे ही मैं पूछूँ तो इनकम किसका एग्जाम्पल हो गया? फ्लो का, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको मेजर करा जाता है. या यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द बैंक डिपॉजिट ऑफ योर फादर. आपके फादर का बैंक डिपॉजिट कितना है या बैंक में कितना पैसा जमा किया है, तो ये नहीं बताएंगे कि ईयरली इतना जमा किया. आप बताएंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माय फादर इज़ हैविंग अ डिपॉजिट ऑफ 20 लाख रुपीज़. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बता रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो आप मतलब क्या बताएंगे? इसका मतलब डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट किसका एग्जाम्पल हो गया? स्टॉक का एग्जाम्पल हो गया. इससे आपको क्या पता चला? स्टॉक इज़ एनीथिंग विच इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज़ एनीथिंग विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो आप बताएंगे इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने बताया ना, इन्वेस्टमेंट मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, अभी मैंने बताया. तो इंक्रीज इन स्टॉक आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल. तो इनिशियल फाइनल मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम, इनिशियल दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप क्या यूज़ कर रहे हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. डेफिनेशन नहीं बताया गया कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. तो मतलब चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे हम टर्म यूज़ कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करा जाता है. ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर एक्सपेंडिचर, तो आप बताएंगे आई एम स्पेंडिंग, माई मंथली एक्सपेंडिचर इज़ दिस मच, या माई वीकली एक्सपेंडिचर. ये नहीं बताएंगे इस पॉइंट पे मेरा एक्सपेंडिचर इतना है. यदि मैं पूछता हूँ कि आपकी वेल्थ कितनी है, तो आप बताएंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम हैविंग
2 बिल्डिंग्स, 1 कार, 1 लैंड, 1 प्लॉट ऑफ लैंड, ये सब बताएंगे। 2 मकान है, 1 प्लॉट ऑफ लैंड है, एक मेरे पास कार है। तो जब मैं वेल्थ पूछूंगा तो बताएंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपके डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आप इस बात को ज़्यादातर वेरिएबल्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्टॉक एंड फ्लो है। आप अपने से क्वेश्चन पूछिएगा उस वेरिएबल के बारे में। यदि इनकम की, मेरी इनकम कितनी है, यदि आता है एक्सपेंडिचर, तो आप सोचेंगे, पूछेंगे अपने आप से कि व्हाट इज़ माय एक्सपेंडिचर। तो आंसर आप देखेंगे कि जब भी एक्सपेंडिचर का आंसर देते हैं तो आप बताएंगे मंथली एक्सपेंडिचर या डेली एक्सपेंडिचर इज़ दिस मच। इस तरह से ये स्टॉक और फ्लो के एग्जांपल्स आप रियलाइज़ करेंगे। या आपको सोच के इसको बताना पड़ेगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं कि मैं बता दूं। फार्मूला केवल एक ही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यदि उसका मेजरमेंट होता है फ्लो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, वेल्थ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वाटर इन टैंक कि अभी टैंक में कितना पानी है, स्टॉक हो गया। बैंक डिपॉजिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज़ माई बैंक डिपॉजिट। कैपिटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट में इतना कैपिटल यूज़ हुआ है। 100 रुपीज़ नोट, इट इज़ अ स्टॉक। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम हैविंग 100 रुपीज़ नोट। मशीनरी ऑफ शुगर मिल में जो भी मशीन्स लगी हुई हैं वो स्टॉक हैं, वो फ्लो नहीं हो सकती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2 मशीन्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन शुगर यूनिट और 3 मशीन्स। तो ये सब जितने भी ये चीज़ें हैं सब विद आर रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे ही हो गया इनकम या इन्वेस्टमेंट। इनकम मंथली इनकम, ईयरली इनकम। इन्वेस्टमेंट मतलब ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर हाउ मच capital is being extra capital is being added to production unit, या what is the increase in capital in a production unit during an accounting year। during आ गया, during an accounting year मतलब पीरियड ऑफ टाइम। वाटर इन अ स्ट्रीम, जो टैंक का पानी होता है वो स्टॉक होता है, और स्ट्रीम का पानी, झरने का पानी फ्लो होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इंटरेस्ट हमको मिलता है बैंक में डिपॉजिट पैसा किए रहते हैं, तो इंटरेस्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। मैं पूछता हूँ कि या बैंक में जाएंगे लोन लेने, या पूछेंगे कितना इंटरेस्ट है, तो बैंक ये थोड़ा नहीं बताएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज इंटरेस्ट। यदि बैंक बताता है 7.5% इंटरेस्ट है तो उसके साथ बताएगा मंथली, ईयरली। तो ईयरली मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट आपको 7.5% देना पड़ेगा। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने बताया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लो। कैपिटल इज स्टॉक, कैपिटल फॉर्मेशन इज फ्लो। मोनेटरी एक्सपेंडिचर, जो भी पैसा आप खर्च करते हैं, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ फ्लो। कंजम्पशन ऑफ शुगर, शुगर का जो कंजम्पशन आप कर रहे हैं, जो भी कंजम्पशन आप करते हैं वो भी किसका एग्जांपल होता है, फ्लो का एग्जांपल होता है। क्योंकि कंजम्पशन आप बताएंगे कि पर डे आई एम कंज्यूमिंग दिस मच अमाउंट, या माई मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ दिस मच, या ईयरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ दिस मच। तो जब भी कंजम्पशन की बात होती है कि कंजम्पशन पे कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, यहाँ कंजम्पशन का मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन। तो अगेन इसका एग्जांपल आप किस फॉर्म में देंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टाइप में आप देंगे। तो स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस पूछा जाता है। पहला इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड at a point of time, and flow it is a quantity of an economic variable which is measured during a period of time। ये हो गया फ्लो। स्टॉक के बारे में दूसरी बात, इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। इट हैज़ टाइम डायमेंशन लाइक पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। टाइम का डायमेंशन आपको बताना पड़ेगा कि टाइम कितना लंबा है। पर मतलब 1 घंटा लंबा टाइम आप बताएंगे, या 1 दिन लंबा है, या 1 मंथ, या 1 साल। लेकिन यहाँ पे तो कोई टाइम डायमेंशन होता नहीं है, एक मोमेंट पे आपको बताना होता है। और तीसरा डिफरेंस, दोनों के जो एग्जाम्पल्स हैं ये हो जाएंगे। सो this is all about these topics. Thank you.